Hello friends, welcome to UGC Net Success. So friends, on this channel we discuss the previous year papers of UGC Net for different subjects. And friends, in today's video we are discussing the UGC Net exam paper 1, which is general paper 50 questions of March 2023, and this exam was held in slot 2 months evening shift. So friends, if you are preparing for UGC Net and you want to clear the JRF, this channel will be very useful and will be very helpful for you in your preparation for UGC नेट पेपर्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन so that you can get the notification of our upcoming video. So let's move on to the questions. Here there is question number 1. As you know, the first 5 questions of all UGC net general paper 1 always from the data interpretation. Alright, so यहाँ पर ये टेबल दी हुई है. The following table 1 and table 2 shows the breakup of 4170 vacant posts in 6 banks A to F, the percentage breakup of the requirement of personals in 6 different cadres, namely IT officer, agriculture field officer, law officer, finance executives, and technical officer, and probationary officers. Assume that these percentages are the same for all 6 banks. Based on the data in the table, answer the questions. So bank wise vacant post hai, this is the 800, 940, 600, 820. Okay, so let's move to the question. ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो ऊपर लिखा हुआ था, 2 पेज के बाद यहाँ क्वेश्चन लिखा है. Bank A and C recruited ITOs, means IT officers, as per the given requirement. After a few days, some of the newly employed ITOs left Bank A and joined Bank C. Means A में आए और C में आए, थोड़े से जो है C में चले गए. The number of new recruits in ITOs in A and C have now become equal. The percentage of new recruits who left Bank A is. तो कैसे करेंगे इसको? ए और सी ये रहा, ठीक है. IT 11% है, ठीक है, तो 88 हो गया 11%. ऐसे सी का हो गया 66%. अब इसमें कितने चले गए कि दोनों बराबर हो गए, तो 11, 77 एंड 77, ठीक है ना, ऐसे तो होगा. तो 11/88 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 12.5. ये रहा 12.5. 1 इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही टेबल है. क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, by what percentage is the number of recruitments in law officer more or less in C, E and F taken together than in A, B, D taken together? कितने ज्यादा है या कम है C, E, F और A, B, D? तो ये रहे लॉ ऑफिसर कितने, 10%. A में कितने हो गए, 80, B में 94, C में 60, फिर 82, 45, 56, ऐसे ही होगा, ठीक है ना. तो A, B एंड D कितने हो गए, 80, 80, 160, 160, 90, 250, 256. ओके, और इसमें कितने हो गए फिर, 60, 40, 100 एंड 50, 150 एंड 161. ऑलराइट, तो ये परसेंटेज पूछी हुई, इसकी परसेंटेज कितनी है ये, तो वही 256 माइनस 161 कितना आ जाएगा, 95/256 इंटू 100 कितना हो गया, इट वुड बी लेस देन 37.11. हमें आसपास का बताना है ना. अब एक तरीके से देखें तो मोर देन 33.22 भी है ये, और लेस देन ये है. तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसमें ऑप्शन जो है ठीक तरीके से नहीं बनाए. आंसर इसका 4 दिया गया था, लेस देन इतना, विच इज नियर बाय 37%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The ratio of recruitment of agricultural field officer in C and E taken together with that of D and E taken together is, क्या है देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कितने, 35%. तो C एंड E का अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1050. ओके, और D एंड F का अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1380. अब इसका 35% कर देंगे, इसका हो जाएगा 35%, ठीक है. कितना आ जाएगा, 367.5
एंड 1380 का 483। तो रेशियो क्या आ जाएगी फिर इसकी? वही आ जाएगी, देखिए ये रहा, इसकी आगे रेशियो 35 एंड 46। तो 4 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Bank DNF had 15% more POs than their requirement. After 1 year, total strength of staff of DNF was brought down to the original strength through retrenchment of some employees. By what percentage is the retrenchment more or less in Bank D than in Bank F? तो D में कितने लिए PO? तो PO कितने हैं देखिए, 10% है यहाँ पे, तो 82 हो गया, और F का हो गया 56। अब इन्होंने लिए है कितने, 15% मोर, तो 15% इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 94.3, 60 एंड 64.4। ऑलराइट, अब इसका अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज निकाल लेंगे इजीली डिफरेंस करके इसका, तो आ जाएगी परसेंटेज कितनी, 46.3। तो 46.43 more in bank D. So 1 is the answer. Next question number 5. ये 5 है. In bank E, how many more TOs should be employed than the required number so that the ratio of number of TOs to that number of FEs become 2:3? अब यहाँ देखिए TO कितने हैं, 8%, और बैंक कौन सा है, E, तो 450 इंटू 8% कितना आ गया, 36। ठीक है, अब FE कितने हैं, 26%, तो 450 इंटू 26% कितना हो गया, 117। अब 2/3 होना चाहिए इसका, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 78। अब 78 माइनस 36 कितना हो गया, 42। तो 42 मोर TO चाहिए, तो वही रहा 42 इसका आंसर आ गया, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 6। Which of the following statement best describes brainstorming method of teaching? तो कौन सा होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, इसी को तो बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। लूसिड लैंग्वेज नो, थीम बेस्ड नो, स्मॉल स्टेप्स नो। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7। Which of the following are main characteristics of learner-centered approach? It is based on rigid curriculum. It is centered on cooperative determination of subject matter, या फिर it is mainly centered on teachers need, या फिर it lays emphasis on variability of exposure। तो लर्नर सेंटर अप्रोच देखना है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, तो कौन कौन से होंगे, कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन एंड एम्फेसिस ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तो बी एंड डी इसमें आंसर रहेगा, 3 इज द आंसर। करिकुलम क्या रिजिड होना चाहिए, नहीं, ठीक है ना, मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर, सेंटर टीचर है तो लर्नर कैसे होगा, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट इज 8। द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बिसाग। बिसाग कहां पर है, बेंगलोर में। 4 इज द आंसर। बिसाग की फुल फॉर्म क्या है, ये है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि DTH के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करती है, स्वयं प्रभा। ठीक है, नेक्स्ट इज 9। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है TPAC टेक्नोलॉजिकल पेडियोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय मिश्रा एंड कोटलर इन 2006। फिर स्टेटमेंट 2 ट्रैक बिल्कुल ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2 TPAC framework comprises total 6 component। No, there are 7 components, तो ये होगी wrong। 1 is true and second is false, तो 3 इसमें आंसर हो गया। 7 कौन कौन से हैं इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। एक है टेक्निकल नॉलेज, फिर पेडागोजिकल नॉलेज कंटेंट, फिर पेडागोलॉजिकल कंटेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल कंटेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल पेडालॉजिकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल पेडालॉजिकल कंटेंट। तो एक टेक्निकल पेडालॉजिकल एंड कंटेंट तीनों को मिला के ये 7 बनाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज 10।
Which of the following statement best describes summative evaluation in evaluation procedure? ये होना चाहिए summative at evaluation होता है ये। देखिए तो इसमें क्या आएगा, टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या समेटिव इवैल्यूएशन है? नो। टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क, कोर्स वर्क के बाद जो है अवार्ड मिलते हैं, तो इसी को बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज 11, different from being a normal distribution, if a curve is skewed on the right side we call it positively skewed। 1 is the answer। कैसे होता है ये? देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है कर्व का, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम, फिर ये ऐसे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 12, with consistency of data collected is measured at different points of time, it is identified as, क्या बोलते हैं उसे? टेस्ट रीसेट रिलायबिलिटी। तो 2 इज द आंसर। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होती है? दिस इज कंसिस्टेंसी बिटवीन रेटर्स और ऑब्जर्वर्स असेसिंग और स्कोरिंग, इसको बोलते हैं इंटर रेटर, मतलब जो आपस में करते हैं वो लोग, ठीक है ना। फिर स्प्लिट हाफ, क्या ये एक मेजर है यूज टू एसेस द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंटर रिलायबिलिटी, ये भी एक कंसिस्टेंसी है जो कि यूज टू असेस द एक्सटेंट टू विच आइटम और क्वांटिटी विद इन अ मेजरमेंट। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो लिख लीजिए, ठीक है ना। राइटिंग तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा। तो 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 13, चेंज ऑफ बिहेवियर इन पीपल आफ्टर दे कम टू नो they are participating in a research project to produce results that do not have validity is known as, इसको बोलते हैं Hawthorne effect। 3 is the answer। blind effect क्या है? blind effect is not widely recognized। evaluation effect क्या है? used in researcher and behavioral sciences। demand effect refers to tendency of participants in a research study to alter their behavior। ओके, 3 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 14, सम ऑफ द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा? नहीं। प्री टेस्टिंग? नो, थ्रेट्स नहीं है ये ना। एट्रिशन, हिस्ट्री एंड मैचुरेशन, ये है। एट्रिशन क्या होता है? लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट्स और ड्रॉप आउट्स, ठीक है, हिस्ट्री आपको पता ही है। एंड मैचुरेशन मतलब नेचुरल चेंजेस। तो सी डी ई आंसर रहेगा। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 15, 2 स्टेटमेंट्स हैं। इन फोकस ग्रुप डिस्कशन द मॉनिटर इज सपोज टू प्रोवाइड अ लिबरल क्लाइमेट टू पार्टिसिपेंट टू ओपन अप। द पार्टिसिपेंट टू फोकस ग्रुप डिस्कशंस शुड रेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस फॉर कंपैरिजन। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 16, इन कम्युनिकेशन denotation is the level of belief, contrast, description, dissent। description। 3 is the answer। next 17, symbols provide meaning when used in contrasting style? no। random order? no। non specific context? no। specific cultural context? तो उसी में तो होगा फिर। 4 is the answer। next is 18, a hot medium is characterized by, कौन कौन से कंपोनेंट है? नॉन मैकेनिकल से होगा? नहीं। लो ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स? यस। इट एनवलप्स ओनली वन सेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाईज, हाई ऑडियंस पार्टिसिपेंट? नो। लो ऑडियंस और हाई में एक ही ठीक होगा, तो बी अगर ठीक है तो ई वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो अगर आपको ये पता है कि ये इसमें ए वाला नहीं होगा तो आप ऑप्शन देख के भी इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ई वाला होगा नहीं, 2 ये ऑलरेडी कैंसिल हो गए। डी सी डी इज द आंसर। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 19, फिर 2 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 है, इन द इनिशियल स्टेजेस मास कम्युनिकेशन वाज कंसिडर्ड एज स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा।
Now it has its linguistic component in terms of science, codes and languages. दोनों ही ठीक हैं ये. Both are true. One is the answer. Next is 20. फिर से two statements है. Mass communication supplies an inventory of public message and allows for monitoring of social values. ये बिल्कुल ठीक है. In large scale social settings, mass media will enable integration of social institutions. ये भी ठीक है. Both are true. One is the answer. Next 21. अभी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया. An amount of 8500 becomes 9500 in 3-year time at some simple rate of interest. How much of amount 10,200 will become in 5 years same rate of simple interest? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए प्रिंसिपल सबको पता है, PRT प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. तो प्रिंसिपल है 8500, टाइम आ गया 3 इयर्स का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परसेंटेज एंड अपॉन 100 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है इसका, देखिए 1000. तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कैसे आ जाएगा. तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये इंटू हो गया, फिर 1000 इंटू 100 अपॉन 8500 इंटू 3 इज इक्वल टू जो आर होगा वही आ जाएगा इसमें. तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर ये गया यहाँ से और ये इंटू 5 से ये आ गया 13, यहाँ पर 200 और ये हो गया 200 अपॉन 51, है ना. अब इसको देख लीजिए आप. अब कितना है यहाँ पर 10,200 इंटू 5 ईयर टाइम है, इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर 200 अपॉन 51 अपॉन में 100. इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 और फिर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 12,200 या 12,200. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 22. A man look at the photograph of person X. ठीक है. says she is the daughter of the husband. ये क्या है, daughter of the किसकी, husband of the only daughter of the father of my brother in law. मतलब ये इसकी सिस्टर हो गई, ठीक है ना. और ये जो किसको बोल रहा है फिर, ये डॉटर हो गई. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 23. A person starts from point A and walk 30 meter in the north direction and then 20 meters toward west. तो अब देख लेते हैं इसको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. तो स्टार्ट कहाँ से किया, पॉइंट ए. जैसे दिस इज पॉइंट ए, नॉर्थ गया कितना 30 मीटर, देन वेस्ट की तरफ मुड़ गया, कितना गया 20 एंड रीचेज एट पॉइंट बी. ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए है. ही टेक साउथवर्ड टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर. ये 10 आ गया, ठीक है, टू पॉइंट सी. देन इट टर्न ईस्टवर्ड्स एंड कवर 15. तो यहाँ तक पहुंच गया ये, इस पॉइंट तक. डी पॉइंट ये है 15. फाइनली टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 20 मीटर. यहाँ से फिर ये यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे 20 मीटर राइट घुमा है ना. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट. अब इन दोनों का बताना है. 5 मीटर. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 24. What should replace question mark in the given series? तो 55, 47, 74. तो देखिए किस तरीके से किया गया है ये. देखिए 55 माइनस 8 47. तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है, माइनस कर दिया. अब प्लस कर दिया 3 का क्यूब, फिर माइनस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. इस तरीके से करते करते यहाँ पर ये आया हुआ है. देखिए अभी यहाँ पर ये प्लस किया है ना 3 का क्यूब, प्लस 27 कितना आ गया देख लीजिए 74 हो गया. अब माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर 64, 10 आ गया, ठीक है ना. तो ये करते करते यहाँ पर आ जाएगा -250. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 25. 25 है ये. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड टेक्नोलॉजी इज रिटन एज. टी को ई को यहाँ एक्सचेंज कर दिया, एच और सी को एक्सचेंज कर दिया, फिर ओ और एन को एक्सचेंज कर दिया. ऐसे क्या करेंगे, ई और जी को एक्सचेंज कर देंगे, है ना, और एन और ओ को कर देंगे. तो मतलब ई जी स्टार्ट में होना चाहिए और एन ओ लास्ट में होना चाहिए. तो ई जी स्टार्टिंग में है और एन ओ ये रहा, तो 3 में है ऐसे. फिर
ई यहाँ पर आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, ई एन, और फिर क्या आएगा, ए आर, ई एन ए आर और आई टी, तो 1 ही इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 26, critics of Freudian theory should get themselves psychoanalyzed because opposition to the theory is itself caused by unconscious resistance arising from the Oedipal complex, which according to the Freud distorts one's thinking, which logical fallacy is committed in the above argument. अब ये फ्यूडियन थ्योरी क्या है आप देख लीजिएगा। तो फैलेसी है इसमें बेगिंग द क्वेश्चन, 3 इज द आंसर of circular reasoning. All right. Next 27. Which one of the following proposition is logically equivalent to the proposition some attorneys are logicians? तो इसमें क्या बोला गया है, some attorneys are logicians, like this, है ना। तो इसमें क्या हुआ इसका मतलब, some logicians are attorneys, obviously 3 is the answer, ये some है ना, यही बनेगा इसका, 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, इफ द प्रपोजिशन नो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, नो फ्रॉग, ये फ्रॉग है, ये एम्फीबियंस है, आर एम्फीबियंस, इज गिवन एज फॉल्स, ये फॉल्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू? इसका मतलब क्या आएगा, ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, या फिर सम फ्रॉग्स कैन बी एम्फीबियंस। इमीडिएटली इन्फर कौन सी हो रही है, देखिए दो आएंगे, या तो ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, या फिर सम फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। तो इमीडिएटली तो क्या होगा, चाहे सारे हो ना हो कुछ तो होंगे, तो 2 इज द आंसर, सम फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। नेक्स्ट 29, which of the following proposition are so related that if one of them is true the other has to be false and vice versa? तो अगर एक ट्रू है तो बाकी फॉल्स हो जाएंगे या वाइस वर्सा होंगी, ठीक है। ऑल कैमल्स आर हर्बीवोरस, तो ऑल कैमल्स आर हर्बीवोरस, ठीक है। सम कैमल्स आर हर्बीवोरस, ये तो फॉल्स हो जाएगा। फिर सम कैमल्स आर नॉट, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नो कैमल्स आर हर्बीवोरस, ये ठीक है। इसके ये ऑल कैमल्स हर्बीवोरस, तो इसके अपोजिट में आ गया ना बिल्कुल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, यही वही पूछ रहे हैं कि कौन सी फॉल्स या वाइस वर्सा होगी। तो इसमें ए एंड डी आंसर रहना चाहिए, 1 इज द आंसर, क्योंकि इन दोनों में से एक ही ट्रू हो पाएगा और दूसरा फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ स्वस्वरूप प्रसिद्ध फॉलेसी? तो ये वही इंडियन लॉजिकल वाले हैं, इंडियन न्याय सिलोजिज्म के ये क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने लास्ट पेपर में डिस्कस किया था, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई थिंक 3rd क्वेश्चन है इस पर ये। तो इसमें द स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस लाइक द लोटस ऑफ अ लेक, ये नहीं है। साउंड इज इटर्नल, नो, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। तो इसमें कौन सी ऐसी पॉलिसी है, मतलब देयर इज सम फॉल्ट इन दैट, कि भाई वो पढ़ने पे पता लग जाए कि भाई हाँ ये गलत है। तो साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसमें ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन साउंड एक क्वालिटी है जो कि विजिबल है, क्या ऐसा होता है? नो, मतलब स्वस्वरूप प्रसिद्ध, मतलब खुद दिखाई देने वाला एक पॉलिसी है, एक फॉल्ट है। तो 3 इसमें आंसर होना चाहिए, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सबस्टांस, नो, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 31, which of the following best describes web 3.0? यूजर जनरेटेड ऑनलाइन बिजनेस, या फिर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट वेब वेयर एप्लीकेशंस यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर कोलैबोरेशन एंड सोशल मीडिया, नो। रेफर टू स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, नो। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 32, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज which of the following statements is are true? In an email BCC मतलब कार्बन कॉपी होती है ना, ये allow sender of a message to conceal the recipient enter in BCC fields of other recipient, बिल्कुल ठीक है ये। फिर phishing is a malicious program installed on a system that stays concealed avoid detection, no, it is not a malicious program। phishing क्या होती है, जो emails भेजते हैं ना, it is an attempt। फिर spamming is an attempt to acquire sensitive information,
ये क्या होता है, अनवारंटेड ईमेल्स होती हैं, स्पैमिंग, ठीक है, स्पैम्स आ गए अनवारंटेड, नहीं चाहिए था फिर भी भेज दिया, है ना। तो बी और सी गलत हो गए, तो ए, ओनली ए इज करेक्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 33, given below are two statements, mainframe computers have similar internal memories than desktop computers, क्या ऐसा होता है? नो, ये रॉन्ग है। स्प्रेडशीट्स एंड वर्ड प्रोसेसर्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 34, ICT is used to control and monitor everyday activities. Which of the following activities are most likely to use sensors? Devising a master slide, no. Activating a burglar alarm, yes. Opening automatic doors, yes. Creating a spreadsheet, no. तो बी एंड सी इसमें आंसर रहेगा, 2 इज द आंसर। आईसीटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 35, which of the following statement about computer network are true? एन इंट्रानेट इज पब्लिक नेटवर्क, नहीं, ये तो प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है उसको बोलते हैं इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ये ठीक है। फिर एन एक्सट्रानेट इज एन इंटरनल नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस्ड एक्सटर्नली बाय ऑथराइज्ड यूजर, बिल्कुल ठीक है ये। तो क्या हो गया, बी एंड सी आर करेक्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 36, स्टेटमेंट 1 है, रिवर्स एंड लेक्स दैट हैव बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आर सेड टू बी यूट्रॉफिक, नहीं, ये रॉन्ग है। Rivers and lakes that are rich in organisms and organic material are called as oligotrophic, ये रॉन्ग है, ये वाइसा वर्सा कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 37, व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल इंजन इन मोटर व्हीकल? ये क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल? क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल? इंजन विच रन्स एक्सक्लूसिवली ऑन बायोफ्यूल्स, नो, ये क्या होता है? मिक्सअप होता है ये, इन विच बायोफ्यूल एंड गैसोलीन कैन बी पुट इन एनी रेशियो। फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल है, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाथवेज फॉर टॉक्सिकेंट्स टू एंटर इनटू आवर बॉडी? इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं है, डर्मल है, इंजेक्शन है, एक्सट्रैक्शन नहीं है, तो ए सी डी इसमें आंसर रहेगा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 39, in order to limit the rise in global temperature to 1.5 degrees Celsius over pre-industrial levels, IPCC indicates that the world has to reduce the emission of greenhouse gases to extent of dash percent by the year 2030. कितना है? 45%, 3 is the answer and 0 by 2050 का टारगेट है। नेक्स्ट is 40, although ozone is a pollutant in the ambient air, but in stratosphere it is valuable because it absorbs harmful, क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन? यूवी रेडिएशन, 3 इज द आंसर। आईआर का मीनिंग क्या होता है? इंफ्रारेड, ऑलराइट। नेक्स्ट 41, which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? जीवन कौशल, दीक्षारंभ यस, विश्व भारत नहीं, गुरु दक्षता यस, विश्व दर्शन नहीं, तो ए बी डी आंसर रहेगा इसमें, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 42, स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है, टेक्निकल एजुकेशन इज दैट विच एम्फसाइजेज ऑन learning of techniques as technical procedures and necessary skills and aims at preparing technicians usually above the secondary level, ये बिल्कुल ठीक है। there is no distinction between vocational education and industrial education and technical education, now ये बिल्कुल wrong है। तो statement 1 is true and second is false, 3 is the answer। next is 43, which of the following are state universities in India? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात यस, नागालैंड यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आचार्य नागार्जुन ये स्टेट है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ये स्टेट है, सिक्किम यूनिवर्सिटी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो कौन कौन सी स्टेट वाली हो गई फिर? ए सी एंड डी, तो 3 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44,
Which of the following are included among the institutes of agricultural research? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये तो है ही है, फिर IIFT ये भी है, CAMD ये भी है, इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है। इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। बाकी की जरा आप लिखिए कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 44, टाइम लिखिए वहां पर, एंड उसके बाद आंसर बताइए। तो ABCD आंसर रहेगा इसमें, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 45, फिर से स्टेटमेंट्स आ गई। इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, नो रॉन्ग है। तो 1 करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, 3 इज द आंसर। अब 46 to 50 क्वेश्चन कौन से? 5 क्वेश्चन ये है पैराग्राफ से। तो ये पैराग्राफ आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इंपीरियलिस्ट conquest of Asia and Africa was accompanied by intense rivalries, conflict among the European imperialist powers. तो क्वेश्चन नंबर 46 है ये, विच ऑफ द कंट्रीज वाज अलाउड टू टेक कंट्रोल ऑफ इजिप्ट? कौन सी कंट्री को दिया था? ब्रिटेन को। 1 इज द आंसर। कहां से पता लगा? देखिए यहाँ ले रहा है इस लाइन में, वेयर बाय ब्रिटेन वाज गिवन फ्री हैंड इन इजिप्ट इन एक्सचेंज ऑफ मोरक्को वाज गिवन टू फ्रांस। नेक्स्ट 47, ये 47 है। स्टेटमेंट 1 है, द कंपीटिंग क्लेम्स ओवर अफ्रीकन कॉलोनीज वर जनरली सेटल्ड थ्रू वॉर्स अमंग द यूरोपियन पावर्स। ये जो है रॉन्ग है, बिकॉज ट्रीटी से भी जो है डिसाइड किए थे उन्होंने, आप ये ले लीजिए, हम ये ले लेते हैं। फिर फ्रांस वाज इनकम्प्लीट ओनली विद ब्रिटेन ओवर मोरक्को, नो जर्मनी से भी कंफ्लिक्ट में था, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दोनों रॉन्ग हो गए, बोथ आर इनकरेक्ट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 48, which of the following countries was allowed to have many colonies in Morocco? फ्रांस, फ्रांस के पास आ गया था, 2 इज द आंसर। फिर है 49, which among the following European powers were involved in tussle over Morocco? तो ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी। तो ABC इसका आंसर रहेगा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 50, स्टेटमेंट 1 है, फ्रांस अलाउड जर्मनी टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द फ्रेंच कॉन्गो, नो पोर्शन दिया था ओनली, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर फ्रांस वेंट टू वॉर विद ब्रिटेन इन 1904, नो ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इन 1904 आफ्टर बीइंग लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, मतलब स्टार्ट नहीं बस एंड हुआ था 1904 में, ठीक है ना। तो बोथ आर इनकरेक्ट, सो 2 is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of UGC NET paper 1 general paper, 50 questions of March 2023 shift 2. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई suggestions हो, कोई advice हो, so you can just always go into the comment section and mention it over there. We always appreciate the comments, and if you find anything wrong in that, then we always appreciate your efforts for informing us anything wrong in the answers or any new idea to answer the questions as well. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.